Hello, everyone, and welcome to the online platform of Drishti. So, as you all know, that you can look here that this is a new course for the class 12 students, and this is for the board plus CUET exams. So, this is a new course which is launched by the Drishti Learning app. It's launched on the Drishti Learning app. And this is a course for all the 12th class students who will be appearing for the board exams in the upcoming year, that is 2026, and also for their CUET exams in the year 2026. And myself, I'm Girish Venkatesh, and I'll be taking your political science class. So political science, as you all know, earlier we used to call it as civics. In class 11th and 12th, we call it as political science. And it is one of the very important subjects which is related to the humanities background. And if you have taken political science, let me tell you, you have a lot many options. That means after doing your 12th, you can go for the graduation, post-graduation, and even for PhD in political science. And keeping political science as a subject, you can appear for your higher exams like, for example, the prestigious UPSC exams or the state services and all. And even in political science, there is a part called public administration. So from that point of view also, you have a lot many options. Political science also includes the international relations and foreign policy making. So from that aspect also, you have lot many options in your future. And as you all know, that Drishti IAS is one of the most trusted institutions in India. And Drishti, what we have done here is that we have launched this program, launched this course, especially for the online preparation for your board exams. First, our focus will be on your board exams. And meanwhile, as we make you prepared for your board exams, we will also get you prepared for your CUET exams. And when it comes to the schedule of how it will go on, we have a planned schedule which will be provided to you by the coordinators here at Drishti. And this will be a planned schedule. That is, when I say planned schedule, it means it will have each class detail, that what topic will be taught, when you will be having your weekly papers, and how you will be, very importantly, we'll also tell you how to write exams, because when it comes to boards, when it comes to CUET, both are different. A student's approach towards board exams, it is different, or it must be different from that towards CUET. CUET is objective. Boards is what? Subjective. You have to write answers. So when we are going on with the chapters, what we will do is that I'll tell you how to frame answers, how to write answers. Everybody knows to write answers. सबको पता है कैसे आंसर लिखना है. But attractive answer कैसे होना चाहिए? Short, on the point, attractive answer कैसे होना चाहिए, जिससे जो examiner आपका पेपर चेक कर रहे हैं, they give you 100% marks. ठीक है? And in the same way, our entire focus is not on any other books. We'll be using NCERT. So the first thing you have to keep in mind, you have to do two things. दो चीज करना है आपने. ये क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो दो चीजें करनी है. एक,
You have to have your NCERT books in front of you. अब बात आता है कितने NCERT books है. There are 2 books when it comes to your political science CBSE course. One, it is Politics Since Independence. Yeah, Politics in India Since Independence. This is the book. I'll show you the book. Politics in India Since Independence. And the second book is with regard to contemporary world politics. That is something with regard to world politics. And this proper book, that is Politics in India Since Independence, it is with regard to your Indian political, matlab Indian political history, where we will be talking about nation building and all other aspects. Okay? So, the very important thing is that you have to have your NCERT books. And I will be also using here the pages with regard to the NCERT book. That means the downloaded pages of the NCERT book, so that the class becomes interactive. And for the class to be interactive, you people also have to ask the doubts which will come in front of you. And for that, we have this live chat option which will always go on for you. In that live chat option, you can straight away write your doubts. You can straight away type it, and that comes in front of us, and I'm going to reply you. I'm going to make your doubts clear on the spot. Plus, each and every line of the NCERT we are going to go through. And when we are going into each and every line, I will also tell you that in the last 10 years, what were the questions which had come from this chapter or from any of the chapters. और जैसे आप लोगों को पता है, CUET कोई बहुत पुराना एग्जाम नहीं है. 2022 से ये एग्जाम चल रहा है, after 2022. So, for the CUET exams, we might not have a lot many questions from the previous years, जिसको हम लोग PYQs बोलते हैं, previous year questions. ठीक है? But when it comes to question and answers, तो last 10 years का हम लोग question and answers को डील करेंगे. That is 2014 से लेकर 2025 तक का. ठीक है? और उसमें I will be discussing you, I'll be telling you the main points, and even sometimes I'll be dictating you with the answers. दूसरी चीज ये है कि you also have to have a copy in front of you. And please, जब कभी भी आपके पास कोई कॉपी है ना, try to make a copy which is, मतलब which will benefit you for your board exams. एक कॉपी ऐसा मत रखो जिसमें ऐसे वाले रजिस्टर की कॉपी मत रखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कीप इट इन दिस मैनर. रखो ही मत, बिकॉज आपके बोर्ड पेपर्स ऐसे आते हैं. दैट मीन्स द लेंथ हियर इज इंक्रीज्ड, और ये आपका ऐसा है छोटा. सो दिस इज द लेंथ, मतलब रेक्टेंगुलर होना चाहिए ऐसे. ठीक है? योर कॉपी मस्ट बी इन दिस मैनर. अगर कॉपी नहीं है तो आप एक पेज ले लो, उसमें 22 लाइंस बना लो. सिंपल सी बात है. मेक 22 लाइंस, 21 से 22 लाइंस. बोर्ड एग्जाम्स के आंसर शीट में 21 से 22 लाइंस होते हैं. रिमेंबर इट. बहुत माइन्यूट चीजें आपको बता रहा हूं. हमें हैबिट होता है ऐसे लिखने का, बट बोर्ड में जाकर तो ऐसे लिखना है. गॉट इट? तो 22 लाइंस या जो भी लाइंस की कॉपी होनी चाहिए. प्लस यहां पे आप देखोगे हर कॉपी में एक मार्जिन लगा रहता है ना? ये मार्जिन आपको लगा रहता है ना? तो इस मार्जिन को हमें, अगर हम कोई लाइंस बना रहे हैं खाली शीट में, रफ शीट को यूज करके लाइंस बना रहे हैं, तो ये मार्जिन भी बनाना जरूरी है. गॉट इट? तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आंसर राइटिंग होना है. और क्लास में when we are going with the chapter, when we are doing the chapter, I'll be telling you main points. मैं आपको मार्क करने को बोलूंगा. So for that,
आपको 2 कलर के स्केच पेन्स रखने हैं. वन शुड बी लाइक येलो, फ्लोरेसेंट येलो वाला स्केच पेन रख लो, और दूसरा एक डिफरेंट कलर रख लो, जो आपको पसंद है वो कलर आप रख लो. उससे क्या होगा, आई टेल यू टू मार्क. अगर मैंने बोला इसको फ्लोरेसेंट से मार्क करो, ठीक है, तो फ्लोरेसेंट से सब कुछ को मार्क करना है. बट व्हेन आई से मार्क इट विद ग्रीन कलर या सम अदर कलर, इसका मतलब वो पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए है, या वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनता है वो लाइन पे. बिकॉज जो भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही बनेंगे, फ्रॉम इनसाइड द बुक और फ्रॉम द बैक क्वेश्चंस. तो बैक क्वेश्चंस भी हमें करना है. तो दैट्स व्हाई आई सेड यू कि हमारे इस दृष्टि के इस कोर्स में हमारे तरफ से आपको पर डे का एक व्हाट टू से व्हाट टू डू पर डे, हमारा जो पर डे का जो कोर्स ये रहेगा स्केड्यूल, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. ओके, सो नॉट टू वेस्ट एनी टाइम, वंस अगेन वेलकम टू दिस बोर्ड प्लस सीयूईटी कोर्स. ठीक है, और ये आपका लाइव कोर्स रहेगा दृष्टि आईएएस के व्हाट टू से इस पे. तो लेट्स स्टार्ट. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं? ये सब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको रखा है. सो दिस इज द फर्स्ट बुक जो मैं आपके सामने में स्टार्ट करना चाहूंगा. दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. अब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे को यहां पे नजर आ रहे हैं? सो टोटल वी हैव 9 चैप्टर्स. ओके, हमारे सामने में 9 चैप्टर्स हैं, और 9 चैप्टर्स में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. अब 9 चैप्टर्स हैं तो एवरी चैप्टर में सब पार्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में वो 3 चैलेंजेस की बात करेंगे हम लोग. देन आफ्टर टॉकिंग अबाउट द 3 चैलेंजेस, देखो ये बुक का फ्रंटल पेज है, हो सकता है आपको देखने में डिफिकल्टी हो रहा होगा. दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कीप योर एनसीईआरटी बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. आप अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने सामने में रखो. अगर एनसीईआरटी बुक अपने सामने में रखोगे तो दिस विल बिकम वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा आपको. ठीक है, मैं यहां से पढ़ाऊंगा, आप वहां पे देखोगे, और जब मैं आपको अंडरलाइन करने बोलूंगा आप अंडरलाइन करोगे. जब मैं आपको बोलूंगा किताब में ही बगल में इसको लिख लो, तो किताब में ही लिख लिया करो. कोई जरूरत नहीं है, जितना गंदा करोगे किताब उतना अच्छा लगता है. इसका मतलब आपने उतना पढ़ाई किया है उस किताब को. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग इट ऑन द बुक. और जब कोई आंसर लिख रहे हैं तो वो तो आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, बट व्हेन वी आर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स तो किताब में ही लिख लेना बहुत अच्छा है. तो वो सब चीज मैं आपको गाइडलाइंस करूंगा. इन द सेम वे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें हम कांग्रेस के पार्टी के डोमिनेंस की बात करेंगे, कि वी ऑल नो दैट फर्स्ट इलेक्शंस इंडिया में कब हुआ था? 1952 में हुआ था. एंड आफ्टर दैट फर्स्ट इलेक्शन टिल 1967 वी फाउंड दैट देयर वाज वन पार्टी डोमिनेंस, दोनों सेंटर पे एज वेल एज द स्टेट्स पे. इसके अलावा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग 5 ईयर प्लान्स और ये सब के बारे में बात करेंगे. इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन, मैंने आपको बोला ना पॉलिटिकल साइंस आल्सो हैव फॉरेन पॉलिसीज रिलेटेड टू इट. तो इंडिया का जो एक्सटर्नल रिलेशन है, इसमें हम इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पंचशील ऑल्सो. वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि इंडिया का जो एक्सटर्नल पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी को एक्सटर्नल पॉलिसी बोला जाता है, ये किस प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है, कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जिसपे आपका फॉरेन पॉलिसी बना हुआ है. और जब हम इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारा रिलेशन पाकिस्तान के कैसे है, आप सबको जग जाहिर है कि इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसा है. तो हमें इन डेप्थ उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ. इन द सेम वे इंडिया का रिलेशंस चाइना के साथ कैसा था पहले, बिफोर 1962 में क्या हुआ, वॉर हुआ चाइना के साथ. तो चाइना के साथ वॉर होने से पहले इंडिया का रिलेशंस बहुत अच्छा था. तभी तो नेहरू जी और चाइनीज प्रीमियर हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई ऐसे करके करते थे, है ना. बट
वही भाई भाई करके चाइना ने क्या किया, 1962 में इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और वो अटैक करने के पीछे क्या रीजन था? तिब्बत एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है दलाई लामा का नाम सुना होगा, तो वो दलाई लामा से रिलेटेड भी बात यहां पे पढ़ेंगे। उसी तरह इंडिया का बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशंस है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। नेपाल के साथ क्या रिलेशन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। तो जो जो चीज जिसके जिसके साथ है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, हर कंट्री के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी हियर, वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली विथ रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट कंट्रीज। उसके बाद चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। दैट मींस 1977 के बाद कांग्रेस का पूरा वो हो गया, खराबी हो गया। दैट मींस 1967 से वन पार्टी डोमिनेंस जब खत्म होने लगा, तो कांग्रेस का जो पावर था वो तुम्हारा रिड्यूस होने लगा, नंबर ऑफ सीट्स रिड्यूस होने लगा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, इमरजेंसी के बाद तुम्हारा जनता दल गवर्नमेंट आया, फिर उसके बाद कांग्रेस का रिस्टोरेशन स्टार्ट होता है। एंड देन द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये है जो बोलते हैं ना ब्लैक डे या ब्लैक डे इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज विद रिगार्ड टू इमरजेंसी। जो इमरजेंसी 1975-76 में इंडिया में हुआ था। और क्यों इमरजेंसी हुआ, व्हाट वर द situations that led to the emergency, whether it was the Bihar students movement, the Gujarat students movement, तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद पॉपुलर मूवमेंट्स, इंडिया में पॉपुलर मूवमेंट जैसे मास मूवमेंट होते हैं ना, एक होता है पीपल्स मूवमेंट और एक होता है इंडिविजुअल मूवमेंट। पॉपुलर मूवमेंट का मतलब जिसमें मास, जैसे गांधी जी जो भी मूवमेंट चलाते थे वो पॉपुलर मूवमेंट्स होता था, वो मास मूवमेंट्स होता था। व्हाई? बिकॉज ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो यहां पे नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे मूवमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह रीजनल एस्पिरेशंस एंड रीसेंट डेवलपमेंट। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करें। सो ऑल ऑफ यू हैव टू टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक। अगर आपने अपना एनसीईआरटी बुक नहीं निकाला है, देन इट इज माई रिक्वेस्ट कि आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स। मैं 30 सेकेंड्स के लिए वेट कर रहा हूं, आप अपने एनसीईआरटी बुक को निकाल लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले यह चीज याद रखना है कि जाकर अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आपको सबसे पहले जाकर एनसीईआरटी बुक का परचेज करना है। यू हैव टू परचेज द एनसीईआरटी बुक। 2 बुक्स है, वन इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड द अदर वन इज कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, चलो आई होप मेरे इतने कहने तक आपके सामने में एनसीईआरटी बुक आ गया होगा। फिर भी बाय चांस अगर किसी भी बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, डोंट वरी, हम यहां पे किस लिए हैं? आपके लिए। वी आर वाई, हम आपके लिए यहां पे हैं। एंड लुकिंग एट दैट एस्पेक्ट, हमने क्या किया है कि द एंटायर एनसीईआरटी बुक को वी हैव केप्ट ऑन द स्क्रीन so that you people are connected to the screen. I am also connected to the screen. ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं एनसीईआरटी बुक नीचे देख के पढ़ूं, ये आपके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, सो वी आर कमिंग अप विद द फर्स्ट चैप्टर। अब देख लो, आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट पेज। नाउ इन दिस फर्स्ट पेज व्हाट यू आर सीइंग, कभी कभी ये पिक्चर्स आ जाते हैं, रिमेंबर इट। ऐसा मत सोचना कि ये पिक्चर्स कभी नहीं आ सकता है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है, बट आपके एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं आएगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ द एनसीईआरटी बुक। और एक चीज याद रखना, हमारा ये जो कोर्स है बोर्ड कम सीयूईटी, इट इज गोइंग टू, मतलब फर्स्ट राउंड of the syllabus, it will be completed by October. Most probably September last and October तक फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट होना ही है, बिकॉज आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे नवंबर दिसंबर में। तो टू गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर योर प्री बोर्ड, वी विल ऑल्सो मेक यू प्रिपेयर फॉर दैट प्री बोर्ड एग्जाम्स। बिकॉज प्री बोर्ड क्या होता है, एक सेमीफाइनल होता है ना, सेमीफाइनल होता है। सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म करना है, तभी जाकर फाइनल में और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो सेमीफाइनल के लिए आज से तैयारी हम लोग स्टार्ट कर दिए। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल गो ऑन। सो डोंट गेट, मतलब पेशेंस रखना है।
पैनिक नहीं होना है कि यार आज तो हमने सिर्फ 2 पेज पढ़ा, वी हैव स्टडीड ओनली 3 पेजेस टुडे, कैसे कंप्लीट होगा? डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग टाइमली चीजों को खत्म करेंगे। तभी तो मैंने आपको बोला कि फॉर द कमिंग वीक यू विल बी प्रोवाइडेड द एंटायर स्केड्यूल, डेट वाइज आपको पूरा स्केड्यूल मिलेगा, और जो ड्यूरेशन है क्लास का वो 1 घंटा रहेगा या 45 to 1 आवर रहेगा, 45 मिनट्स टू 1 आवर। ज्यादा लोड भी नहीं देना है अपने आप को, ठीक है? स्लोली एंड स्टेडीली विल विन द रेस। एंड व्हाट इज द रेस? द रेस इज टू गेट good marks in your board exams as well as to secure good percentile in our CUET exams। ठीक है, ये हमारा रेस है, और इस रेस को हम जीतेंगे कैसे? कि स्लोली स्टेडीली प्लान्ड वे में, एंड एवरी वीक आपका टेस्ट होगा। द टेस्ट कैन बी MCQ पैटर्न, द टेस्ट कैन बी सब्जेक्टिव पैटर्न, बट एवरी वीक आपका टेस्ट होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? एंड ऑल्सो डोंट वरी कि आपको लगेगा कि अगर मेरे को डाउट आ रहा होगा तो कैसे क्लियर करें, ये तो ऑनलाइन है, तो देयर विल बी अ डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल्सो। दृष्टि के हर कोर्सेज में आप देखोगे डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, और डाउट क्लियरिंग सेशन में क्या होता है कि यू विल बी प्रोवाइडेड अ लिंक फॉर द जूम ऐप, जहां पे मैं उस जूम ऐप में आपके साथ जुड़ जाऊंगा फेस टू फेस। आप अपना स्क्रीन ऑन कर सकते हो, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, मेरा तो ऑन रहेगा ही। तो फेस टू फेस आई कैन 1 to 1 आई कैन क्लियर योर डाउट्स, फेस टू फेस 1 to 1। इसका मतलब ये क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू मैं आपके डाउट्स को पूरा क्लियर करूंगा। ईच एंड एवरी डाउट, चाहे एक पर्सन को 1 डाउट हो या 10 डाउट हो या 100 डाउट हो, वो हम बैठ के क्लियर करेंगे। सो हर जगह से यू आर व्हाट? सिक्योर। ठीक है, हर प्लेस से आप लोग सिक्योर हो। चलो, सो बिफोर गोइंग इनटू द नेम ऑफ द चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर विच इज बीन सीन। नाउ व्हाट इज रिटन हियर? इट इज रिटन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन कलकत्ता, आज उसको पहले कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता बोलते हैं। हिंदूज एंड मुस्लिम इन कोलकाता in 1947 marked the end of communal violence by jointly flying the flag of India and Pakistan from the trucks patrolling the city। सोचो, ये एक तरीके का, this is a picture with regard to communal harmony। ये एक पिक्चर है जो कम्युनल हार्मोनी का है, दैट इज हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो कम्युनल हार्मनी का है। एंड दिस इज व्हेन, कब था ये? व्हेन हिंदूज एंड मुस्लिम, कोलकाता। कौन सा जगह का है ये? कोलकाता का। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो पिक्चर है, दिस इज रिलेटेड टू विच सिटी, या कहां पे ये पिक्चर लिया गया? तो यू शुड नो दैट इट इज विथ रिगार्ड टू कोलकाता। व्हाट वाज द ईयर? 1947। एंड व्हाट इज दिस पिक्चर एक्चुअली टेलिंग, शोइंग अस? इट इज एक्चुअली शोइंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एंड द फ्लैग ऑफ इंडिया। और यहां देखो, बोथ फ्लैग, फ्लैग और पाकिस्तान और फ्लैग ऑफ इंडिया दोनों यहां पे जुड़े हुए हैं। ये देखो, बोथ ऑफ देम दे आर टुगेदर। सो दैट मींस this picture, it is showing that the flags of India and Pakistan, that too from the trucks patrolling the city. This range of photograph captured the joy of freedom and the tragedy of partition in India and in Pakistan। ये एक तरीके से फ्रीडम को भी दिखा रहा है कि how happy were the people of India and Pakistan to get freedom। I'll not use the word India and Pakistan, I'll use the word हिंदुस्तान के लोग कितने खुश थे, ठीक है, भारत के लोग कितने खुश थे। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो शोड द ट्रेजेडी, कि जो पार्टीशन में जो ट्रेजेडी हुआ था, जो हार्डशिप हुआ था, जो डेथ हुआ, जो वायलेंस हुआ, उसके लिए भी ये एक तरीके का, यू कैन से इट वाज द मार्क ऑफ यूनिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम्स। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि फ्रीडम केम टू अस। ठीक है, फ्रीडम आया, वी गॉट इंडिपेंडेंस, बट विथ इंडिपेंडेंस वी ऑल्सो गॉट सर्टेन चैलेंजेस।
So first thing we have to do is that what were the challenges which we got with this? और जब हम challenges की बात कर जाते हैं, that means what were the challenges which came in front of us when it was with regard to the new nation state. And after challenges, 3 challenges है, उसके बाद we are going to talk about the partition. And in that partition we are going to talk about displacement, कि partition के कारण कैसे लोग displaced हो गए, how people were displaced on both sides of the border, that is India also and in Pakistan also, कैसे लोग displaced हो गए. तो displace हो गए, तो जो displace हो जाएंगे उनको सड़क पे छोड़ दोगे क्या? नहीं, you will be rehabilitating them. Rehabilitation का मतलब एक नया आसरा देना, एक नया जगह देना उनको, एक नया हौसला देना. तो ये काम किसका था? ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था. और जो प्रोसेस है पार्टीशन का, कि हाउ पार्टीशन टुक प्लेस, ये बहुत जानना आपको जरूरी है. एंड पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट कम्स, वी ऑल नो दैट व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया, आफ्टर the end of the British rule, 3 different areas came. One was British India, one was India, the second was Pakistan, and the third one was the princely states. Princely states वो states थे which were ruled by the kings, ठीक है, which were ruled by the kings. तो princely state को माउंटबैटन प्लान, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी बोला जाता है, उस माउंटबैटन प्लान में द प्रिंसली स्टेट्स दे वर गिवन एन इंडिपेंडेंस वेदर टू जॉइन इंडिया और टू जॉइन पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट. और विद इन इंडिया बोला जाता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान, उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे, दे वर एक्चुअली 565 princely states. Most of the princely states, they all agreed to join India, except Hyderabad. हम उस हैदराबाद के पूरे केस को पढ़ेंगे. Then मणिपुर, वो भी नहीं ज्वाइन किया. जम्मू एंड कश्मीर आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, ओनली हैदराबाद एंड मणिपुर दिया हुआ है. इवन आप किताबों में देखोगे, ठीक है, कि देयर वर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी तुम्हारा नहीं ज्वाइन करना चाह रहा था. सो दैट विल कम अंडर डिफरेंट चैप्टर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. और उसके बाद एक और चैलेंज इंडिया के सामने में था, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट मतलब हम अगर स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग स्टेट्स इन इंडिया, then how are we going to create the states? What will be the basis of classification of states? कि states को कैसे classify करेंगे? क्या on the basis of religion? Not at all. Religion के basis पे कैसे कर लोगे? तो क्या किया गया? Language को use किया गया. इसी में हम State Reorganization Act 1956 की बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वाली सब बात करेंगे. So इस चैप्टर का सिनॉप्सिस का मतलब एक छोटा सा आंकड़ा, मतलब छोटा सा एक स्टडी मैंने आपको दे दिया. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पेज. ये सबको दिख रहा है ये पेज? होपफुली ये आपको दिख रहा होगा, बट नहीं भी दिख रहा होगा तो आई वुड बी रीडिंग इट लाउड एंड क्लियर. देखो मेरा आवाज तेज है तो इसीलिए अगर आप लोग ईयरफोन यूज कर रहे हो तो वो कान के अंदर घुसा के लगाने वाला ईयरफोन मत यूज करना प्लीज, नहीं तो कान के वो जो पर्दे हैं ना उस पे थोड़ा सा डेंजर आ सकता है. तो मेरा आवाज थोड़ा सा जोर है, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा धीरे रखने का, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ा रहे हैं तो वो जोश आ जाता है. तो वो जोश तो रहना ही है पढ़ाने में, क्योंकि जोश रहेगा तो सामने से भी जोश आएगा, ठीक है. तो वो एक नारा था ना, वो मैं भूल गया वो नारे को, ठीक है, हाउस द जोश. हाँ ये वाला बात है, हाउस द जोश. मेरे तरफ से तो जोश पूरा 100% है. व्हाट अबाउट यू, हाउस द जोश, ठीक है. तो ये जब भी मैं बोलूं हाउस द जोश तो आपको अपने लाइव स्ट्रीम मतलब लाइव चैट में रिस्पॉन्ड करना है. क्या 50% है आपका जोश, क्या 100% है, क्या 110% है, क्या 200% है, क्योंकि जोश तो
ऊपर भी हो सकता है, मतलब 100% से भी ऊपर हो सकता है। तो इसीलिए तो प्लीज रिमेंबर दैट काइंडली यूज ईयरफोन्स, जो कि जिसमें बाहर से बॉक्सेस लगे रहते हैं ऐसे करके कान में, या आप अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो तो उसमें आप अपना स्पीकर ऑन कर लो, तो लाउड एंड क्लियर रहेगा, डोंट वरी। और लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो है इट इज इंग्लिश, बट आई विल बी ऑल्सो गोइंग बाइलिंगुअल, बट मैं बाइलिंगुअल लिख नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, बाइलिंगुअल लिख नहीं सकता क्योंकि मेरी हिंदी बहुत खराब है। मैं हिंदी अच्छा बोल लेता हूं, आपको यह बता दूं कि मेरा नाम गिरीश वेंकटेश है। आई एम अ साउथ इंडियन, ठीक है, मेरे अंदर कंप्लीट इंडिया का इंटीग्रेशन है। आई एम साउथ इंडियन। आई वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ रांची, झारखंड। मैं सिटी ऑफ रांची, झारखंड, धोनी का सिटी है ना, याद है ना, सिटी ऑफ रांची, झारखंड में आई वॉज बोर्न। I did my studies in Shimla, then in Delhi. Then I got into University of Delhi. I have lot of friends from Bihar, Jharkhand and Rajasthan and all. ठीक है। और as a मतलब मदर टंग अगर आप बोलो, my mother tongue is Tamil. ठीक है, but little bit कंजू कंजू तमिल आता है, ठीक है। So I said you कंजू कंजू तमिल हमें आता है, ठीक है। तो पूरा इंटीग्रिटी है, पूरा डाइवर्सिटी है हमारे अंदर, बट उसमें भी इंटीग्रिटी है। सो आई विल बी टेलिंग यू इन इंग्लिश, आई विल बी मतलब आई कैन राइट वेरी वेल इन इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू हिंदी, सॉरी, माय हिंदी इज वेरी वेरी वीक, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हिंदी बोल सकता हूं, बट लिखने की बात जब आती है तो मुझे 2 बार क्योंकि लिखने के लिए भी सोचना पड़ता है कि छोटी ही लगेगा कि बड़ा ही लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो लेट्स कम टू द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये जो वर्ड नेशन बिल्डिंग है, आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में कभी भी कंट्री वर्ड यूज नहीं होता है। नेवर वी यूज द वर्ड कंट्री, आइदर वी यूज द वर्ड स्टेट और वी यूज द वर्ड नेशन। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा वो जो यूरोपियन ये क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि नेशन स्टेट्स का क्रिएशन होता है। तो नेशन क्या होता है? नेशन इज वेयर यू हैव अ बाउंड्री, यू हैव अ प्रॉपर डिमार्केटेड बाउंड्री and within which diverse people live. But that nation state, it is governed by a authority. For example, the union government, Modi Sarkar is governing us. Or states mein, it is the state governments which are governing us. और local level में भी हमारे local governments है जो हमारे को govern कर रहे हैं। So, nation state जो है, it is a geographical area within a demarcated boundary, within a particular boundary within which diverse people are living, but they are administered, ठीक है, and controlled by a government, ठीक है, and the rule of the land is followed. और हमारे लिए rule of the land क्या है? Constitution. For us, Constitution is supreme. Constitution से ऊपर कोई नहीं है हमारे लिए। बिकॉज इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पेज क्या है? इट इज द प्रियम्बल। जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक। नाउ दिस टेल्स अस व्हाट आर द चैप्टर्स इन द बुक। इन द सेम वे प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें क्या स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इट इज मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सो इट इज अ सोवरेन थिंग, नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए नेशन वो होता है। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब बात आता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला भाई? एवरीबडी सेज 15th August, 15th August, 15th August. But look here, it is rightly said that at the hour of midnight, 15th August 1947, अब मैंने आपको बोला था ना हाइलाइटर निकाल के रखो, तो आपने निकाल के रखा, ये पहले देखो। नहीं निकाल के रखा तो भाग के जाओ निकाल के लाओ, या वो भी नहीं है, हाइलाइटर अभी नहीं है आपके पास,
क्योंकि आपको पता नहीं था मैं ये सब निकाल के रखने को बोलूंगा, है ना। तो व्हाट यू डू, टेक आउट योर पेंसिल और ये अंडरलाइन कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू, एमसीक्यू बन सकता है इससे कि when did India attain independence? It is not 15th August, midnight of 15 August। midnight का मतलब रात के 12 बजे, that is 2400 hours। तो at the midnight of 15th August 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। और इंडिया जब इंडिपेंडेंस अटेन किया तो एट दैट टाइम the first prime minister of free India, basically he was the interim prime minister, elected prime minister भी he becomes afterwards, but वो 1952 में हुआ, क्योंकि इंडिया में जो फर्स्ट इलेक्शंस हुआ था वो 1952 में हुआ। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 1949 में, बट इट केम इनटू मतलब full existence, it came into force it came into force when 26th January 1950। ठीक है, तो 26th January 1950 Constitution of India came into force। ठीक है, 26 जनवरी 1950। और बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 when the constitution it was signed and passed by the constituent assembly। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साइन करके और पास कर दिया तब गवर्नमेंट एक इंटरिम गवर्नमेंट बना। And in that interim government, the prime minister was Jawaharlal Nehru। ठीक है, he was the interim prime minister because constitution बनने के बाद 2 साल लगा पूरा इलेक्ट। आप पढ़ोगे इसी बुक में, हम पढ़ेंगे जब हम इलेक्शंस, वो जो सेकेंड चैप्टर है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि कितना हार्ड काम था, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज to prepare the electoral roll in India। 2 years it took, 2 years, ठीक है, more than 2 years it took to prepare the electoral roll and everything। और इंडिया में फर्स्ट इलेक्शंस जो टेक प्लेस किया वो आपका 1951-52 में तुम्हारा इलेक्शंस टेक प्लेस किया। और फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज द कांग्रेस गवर्नमेंट, दैट इज it got the majority and Jawaharlal Nehru became the prime minister। But yahan pe are we talking about 1952? So please remember that he is not an elected prime minister। Yes, free India ka he is the first prime minister, that is the interim prime minister। Or midnight 1914 and 15th August he addressed a special session of the constituent assembly। अब आपको ये constituent assembly का आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। क्या है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली इट वाज द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स whose main task was to draft and pass the constitution of India। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि इट हैड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पेशल सेशन हुआ 14-15 अगस्त मिडनाइट को 1947 एंड दैट फेमस स्पीच इट्स कॉल्ड एज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। लिख लो, अंडरलाइन कर लो, दिस इज द नेम ऑफ दैट फेमस स्पीच विच Jawaharlal Nehru gave, and that is tryst with destiny। ठीक है, write it down, tryst with destiny। ठीक है, ठीक है।
अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वर्ड ट्रिस्ट क्या है? डेस्टिनी तो हम समझते हैं, ठीक है, डेस्टिनी जो जिसका जैसा किस्मत है वो उसको वहां ले जाता है। तो ट्रिस्ट क्या है? ट्रिस्ट बेसिकली एक सीक्रेट रोमांटिक मीटिंग होता है। मतलब अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में ट्रिस्ट वर्ड का मीनिंग देखोगे तो इट इज अ सीक्रेट रोमांटिक मीटिंग बिटवीन टू पीपल, ठीक है, और इट इज अ मीटिंग इटसेल्फ, ये एक मीटिंग होता है, और द प्लेस वेयर द मीटिंग इज प्लान्ड, तो दैट इज व्हाट। तो यहां पे ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यू हैव टू नो। एंड इन दिस फेमस स्पीच, ये फेमस स्पीच के बारे में है, और इसमें बोला हुआ है कि दिस वाज द मूवमेंट इंडियंस हैव बीन वेटिंग फॉर, ठीक है, ये एक मूवमेंट था जो हर इंडियन वेट कर रहा था। दैट मींस एवरी इंडियन वांटेड दैट इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड दैट वाज व्हाई आवर नेशनल मूवमेंट्स टुक प्लेस। बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। देखो अब यहां पे दो गोल्स के बारे में बात हो रहा है। दैट मींस everyone wanted freedom, everyone wanted independence, but there was two goals, underline it, there was two goals almost everyone agreed upon. एक क्या था? that after independence we shall run our country through democratic government. मतलब एक जो सहमति था सारे लोगों के बीच में, and it was that after India's independence we will be running the country, and the country will be run by a democratic government. Democratic government का मतलब a government which will be by the people, of the people and for the people. लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के काम के लिए। मतलब एक मैंने बोला ना हिंदी वीक है, अब इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो इट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट वेयर द पीपल विल elect their representatives, and these representatives they will run the country as per the wishes and demands of the people, ठीक है। सो वन कॉमन गोल, या one common goal that everyone agreed was that after independence we shall run our country through democratic government, और दूसरा the government will be run for the good of all, particularly the poor and socially disadvantaged groups. और second goal क्या था कि whatever will be the government, जो भी democratic government है, doesn't matter which party is there, but whatever will be the democratic government, that democratic government it will run for the good of the all. किसी एक ग्रुप के लिए वो काम नहीं करेगा, it will run for the group of good of all. That means it will run for the welfare of all, and particularly किसके welfare के लिए? One who is poor and one who is the disadvantaged ग्रुप। यहां पे डिसएडवांटेज ग्रुप जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास भी है, और इसमें माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, इसमें माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड किया गया। तो यहां से आप सोच सकते हो कि एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो मैंने मार्क कर दिया ना, लिख दिया ना, देखो बहुत स्लोली चल रहे हैं, साथ ही साथ आपको मैं ये नहीं बोलता हूं याद हो जाएगा, बट 2 बार आप अपने घर पे इस चीज को पढ़ोगे, तीसरे बार आप खुद आंसर लिख दोगे, गारंटीड है। तो सोचो अक्टूबर तक आपका पूरा कोर्स खत्म, आपका पूरा याद हो गया, सब कुछ हो गया, तो 100 में से कितना आएंगे? मैं नहीं बोल रहा, आप बोलोगे थोड़े दिन के बाद कि मेरे को इतना आएगा, तो वो आपको वो कॉन्फिडेंस I am going to bring, we are going to bring, we as a team in Drishti, we are going to bring that confidence in you, ठीक है। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक है। याद रखना, our full focus will be on what we are teaching. So this is the first question. यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था,
दीज वेर MCQs. तो MCQ के लिए मैं क्या करूंगा, MCQ के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अनदर पेन दैट इज, चलो ग्रीन यूज कर लेते, मुझे ग्रीन बहुत पसंद है. तो MCQ के लिए आज से मैं ग्रीन यूज करूंगा. यहां पे MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. दैट इज MCQ कैन बी 14-15 अगस्त, ठीक है. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आ सकता है. कौन था प्राइम मिनिस्टर, कहां दिया उन्होंने स्पीच, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दैट. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने आपको बता ही दिया. क्लास 11th यू मस्ट हैव रेड ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इन वन ऑफ द बुक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. दैट वाज अ वेरी गुड बुक. अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, इट मींस दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल, ठीक है. प्रीलिम्स जो यूपीएससी के प्रीलिम्स होते हैं, स्टेट सर्विसेज के प्रीलिम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो पॉलिटी से पार्ट आता है, सबसे पहले बच्चे जो यहां पे तैयारी करने, कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के तैयारी करने वाले बच्चे हैं, दे फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद दैट बुक. क्लास 11th का दे गो विद दैट बुक, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर इट. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट आर द टू गोल्स दैट एवरीवन एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. So two goals that everyone, मैं लिख देता हूं, what, नहीं मैंने गलत पेन यूज कर दिया, इसमें ग्रीन पिंक ब्लू पेन से. what are the two goals that everyone agreed upon, ठीक है, that everyone agreed upon at the time of independence. ये ज्यादा से ज्यादा 2 to 3 मार्क्स का आ सकता है, बिकॉज उससे ज्यादा नहीं आएगा. वाई? बिकॉज ओनली 2 points आर देयर. एक पॉइंट ये है कि our country should have a democratic government, and number 2, the government which is running the country, it should work for the good of all, particularly for the poor and socially disadvantaged group. और socially disadvantaged group कौन है? scheduled caste, scheduled tribe, OBC as well as the minorities. अब आप बताओ, was this going to be a very easy thing कि आप आज अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लो, your country has become independent and all of a sudden you become democratic. देखो 1947 इंडिया आजाद हुआ. फर्स्ट इलेक्शंस कब हुआ? I did say you 1952. 47 से 52 5 साल लग गए, ठीक है. सो इट वॉज नॉट अ वेरी सिंपल टास्क टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और वो भी ऐसे जगह आप डेमोक्रेटिक कंट्री को एस्टैब्लिश कर रहे हो. द कंट्री व द पीपल who came from 200 years of slavery. एक तरीके से colonialism तो slavery था ना, हम सब slaves ही तो थे ब्रिटिशर्स के. So we had come out of 200 years of slavery. हमारा agriculture not developed, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं था सिवाय टिस्को के. We were not good when it comes to the economy. Nothing was good. ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है. So in that case we had to do all of this. और सबसे इंपॉर्टेंट था नेशन बिल्डिंग. नेशन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है, आप खुद ही सोचो ना यार, एक घर बनाना है, आपके माँ बाप को कितने साल लग जाते हैं घर बनाने में. अगर मेहनत के पैसे से घर बनाओगे तो बाटा के जूते भी घिस जाते हैं, चप्पल की तो बात दूर है, जूते भी घिस जाएंगे. एक मेहनत से अगर घर बनाओगे, मतलब ईमानदारी से, ईमानदार से कमा के घर बनाओगे तो इट टेक्स टाइम. तो घर बनाने में कितना टाइम लगता है, घर बन जाता है, उसके बाद भी वी फेस चैलेंजेस. और घर बनाने से पहले सोचो कितने चैलेंजेस फेस कर रहे हो. तो ये तो मैं एक इंडिविजुअल हाउस की बात कर रहा हूं. जस्ट थिंक ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया, सो ह्यूज कंट्री, कितना बड़ा कंट्री था. एंड दैट टू सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नेशन बिल्डिंग करना है. दूसरा, उसी वक्त पार्टीशन हो गया तो लोग इधर से उधर हो रहे थे, वायलेंस हो रहा है, और दूसरे तरफ, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों तरफ से वो लोग इंडिया को
तुम्हारा वीकन करने की कोशिश कर रहे थे। सो ये सब चैलेंजेस थे। तो कहने का मतलब, लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस वाज नॉट गोइंग टू बी इजी। इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस, मतलब हम कोई इजीली हमें इंडिपेंडेंस तो नहीं मिला। अगर देखा जाए तो 1857, अगर देखा जाए तो 1857 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857, 1857 से भी पहले आप अगर देखो तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब क्या था? दीज वेर द वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये जो हमारे को इंडिपेंडेंस मिला है, ये कोई इजी कप ऑफ टी नहीं था कि चाय गरम किया और पी लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। नहीं, इट वॉज अ लॉन्ग वॉर। ठीक है, डिफिकल्ट वॉर था। परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन was born in a situation more difficult than that of India. 1947 में there were other countries also which were born, but हमारा जो independence था, या we as a country when we were born of a very difficult circumstance. मैंने आपको बताया ना, difficulty was there everywhere. Princely states, 565 princely states को इकट्ठा करना है, जबकि सबको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक सपना दे दिया कि आप लोग इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, उसके अलावा पार्टीशन का दिक्कत, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा था। बोलता है फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। फ्रीडम कैसे आया? फ्रीडम आया विद द पार्टीशन ऑफ द, आई विल यूज रेड नाउ, मैं मार्किंग के लिए रेड यूज कर रहा हूं। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद द ईयर 1947 वाज द ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट वाज इन दिस सिचुएशन that independent India started on its journey to achieve several objectives. मतलब we got freedom 1947, and with freedom what came? Partition of India, and with partition there was unprecedented violence. Unprecedented मतलब अनकंट्रोलेबल वायलेंस, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसको आप सोच नहीं सकते हो, ऐसे अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस था। देन देयर वाज अ ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि जो लोग पहले अपने, जिनके ancestors, everyone they used to live in Pakistan, they had to come to Delhi. Those who were in India, they had to go to Pakistan. So there was a trauma. Why? Because उनका घर तो गया, उनकी रोजी रोटी भी गई, सब कुछ गया, और जिस जगह वो जा रहे थे, they were living in refugee camps. ठीक है, आप देखोगे। तो दिस वाज अ सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी। अब यहां पे भी एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में आप देखो, भारत का झंडा है तिरंगा, बट पीछे ये जो है, ये जामा मस्जिद आपको दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली का है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के तरफ ही लाल किला भी है। सो द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। सो ये कहां से स्पीक कर रहे हैं? रेड फोर्ट से ये तुम्हारा बात कर रहे हैं, और वो भी रेड फोर्ट से अपना स्पीच दे रहे हैं 15 अगस्त 1947। ठीक है, दैट इज व्हाट इज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ वो दिया है, जिसमें एंड ऑफ 200 इयर्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, 200 साल का ब्रिटिश रूल तुम्हारा खत्म हुआ। और यहां पे ये देखो, ये क्या दिया हुआ है? देयर इज अ 2 डोमिनियंस क्रिएटेड। 2 डोमिनियंस का मतलब वन विल बी इंडिया एंड द अदर वन विल बी तुम्हारा पाकिस्तान। सो देयर आर 2 डोमिनियंस विच आर क्रिएटेड। सो नाउ व्हाट वी विल सी इज दैट द 3 चैलेंजेस। ठीक है, द 3 चैलेंजेस। प्लीज रिमेंबर कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिमेंबर दिस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये लिखा हुआ होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इंडिया डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इंडिया, it was divided into how much? It was divided into 3 parts. One
was with regard to what? One was British India. The second one was Pakistan. ठीक है? And the third one was the princely states. ठीक है? Third one, it's the princely states. ठीक है? Princely states क्या होता है? Place where the king used to rule. Place where the king used to rule. अब यहां पे we are going to talk about the three challenges. Let's quickly talk about the three challenges. मैं ऐसे ही आपको थ्री challenges बता देता हूं. जो थ्री challenges हैं उसमें फर्स्ट आप भी लिख सकते हो इसको. थ्री challenges में the first one is building a united India. Building a united India. Second one is to establish democracy. क्या establish करना है? Democracy करना है. And third one is well-being and development of all citizens. ठीक है? वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स. देखो ये जो दो हैं, तो सेकंड एंड थर्ड, वो हमारा फर्स्ट पेज के टू गोल से ही आ गया है ना. ये दो गोल से ही है फर्स्ट पर वो दो आ गए. और यूनाइटेड इंडिया तो बिल्ड करना ही है. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस थ्री काइंड्स ऑफ चैलेंजेस. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united. मतलब जो पहला और immediate challenge क्या था, इसको थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूं. हाँ, the first and immediate challenge was to shape a nation that was united. तभी तो मैंने बोला building a united India. This was the first challenge. कि इंडिया थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया. ठीक है? द फर्स्ट पार्ट वाज ब्रिटिश इंडिया, द सेकंड पार्ट वाज पाकिस्तान, एंड द थर्ड पार्ट वाज प्रिंसली स्टेट्स. एंड दीज प्रिंसली स्टेट्स, दे वर इंडिजीनियस प्रिंसली स्टेट्स. इंडिजीनियस का मतलब वहीं के वो प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है? एंड इंडिया ऐसे सिचुएशन में था कि दे हैड टू कन्विंस दीज 565 प्रिंसली स्टेट्स to be a part of India and to make a united India. That was a huge challenge. तो यहां पे वही है कि the first and the immediate, underline कर लो, the first and the immediate challenge was to shape a nation. अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, what are the three challenges? बहुत अच्छा क्वेश्चन. इसमें प्लीज रिमेंबर कि आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए. अब देखो आपको आंसर मेकिंग सिखा रहा हूं. I'm trying to tell you how to write a very attractive answer, a good answer, an excellent answer. So never start writing the three challenges are as follows. ये तो सारे बच्चे लिखेंगे. आपको अलग बनना है ना बाकियों से. तो बाकियों से अलग बनने के लिए आप अपने किताब से बाहर मत जाओ. You simply write this very thing कि India got independence in the midnight on 14th-15th August 1947. ठीक है? 1947. And at the time, उसी में ये चीज को add on कर लो कि at the time of independence, there were a lot many challenges which India was facing. Lot many challenges. But among them, the three very important challenges are as follows. उसमें फर्स्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अ यूनाइटेड. ये जो है इसमें आ जाएगा बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया. दिस विल बी द पॉइंट. ठीक है? तो दिस वाज येट एकोमोडेट द डाइवर्सिटी.
तो इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कंटिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी. इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस and followed different cultures and religions. And at the time, it was widely believed that a country full of such kind of diversity could not remain together for long. मतलब यहां पे कुछ लाइंस ऐसे बोल रहा है कि इंडिया is a country which is just like a continent. मतलब इंडिया is just a subcontinent. मतलब एक कॉन्टिनेंट का छोटा पार्ट है. You can say like that. And in India, there is a lot of diversity. Diversity can be with regard to religion. Diversity can be with regard to the culture. Diversity can be with regard to the languages. So in India, there is a lot of diversity also. And it was always felt that with such a diversity, ठीक है, with such a diversity, India could not remain together for long. और बोला जाता है द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर्स. मतलब मीनवाइल ये चैलेंज था और उसी वक्त पार्टीशन भी हो गया. तो लोगों को लगा कि यार जिस चीज का हम डर रहे थे कि डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया को यूनाइटेड नहीं रखेगा, और वही डाइवर्सिटी के कारण तुम्हारा पार्टीशन हो गया. ठीक है, तो वही बोलता है कि देयर वेर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया. Would India survive as a unified country? Would it do so for emphasizing natural? मतलब ये सब एक टाइप का क्वेश्चन है. तो यहां पे आपको जो फर्स्ट चैलेंज लिखना है, बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया, आपने ऐसे ही लिखना है कि इंडिया एज अ कंट्री या इंडिया एज अ कंट्री इट वाज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट साइज एंड डाइवर्सिटी, एंड द पीपल इन इंडिया दे वर डाइवर्स विथ रिगार्ड टू लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजियन, ठीक है, एक्सेट्रा. और बोला जाता है देयर वॉज ऑलवेज अ फियर दैट विथ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी कैन इंडिया बी यूनाइटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड विथ पार्टीशन द फियर्स प्रूव्ड टू बी ट्रू. एंड ऑल्सो हमने आपको बोला इंडिया वॉज ऑल्सो फेसिंग द चैलेंज ऑफ इंटीग्रेटिंग 565 princely states with itself. तो ये सब तुम्हारा चैलेंज था. ठीक है, सेकेंड चैलेंज क्या है? इट इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी में हम सब ने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड इट हैज एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है. दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स, एंड एवरी सिटीजन इज पॉलिटिकली इक्वल. पॉलिटिकली इक्वल क्यों है? बिकॉज एवरीवन हु इज 18 एंड अबव दे हैव द राइट टू वोट. और ये राइट टू वोट कोई पार्टी नहीं दिया है या कोई पर्सन नहीं दिया है. It is given by the constitution. It is guaranteed by the constitution. So India, what it did, because it gave fundamental rights to the people, because it gave the right to vote to the people, इसका मतलब India adopted representative government based on parliamentary form of government. हम सबको पता है कि इंडिया ने कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में भी है. बट इंडिया ने पार्लियामेंट्री में भी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल. सो दीज फीचर्स एंश्योर दैट द पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बुक है, रूल बुक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट्स, fundamental rights, they are given to the people. Number one. Number two, right to vote is also given to the people. इसका मतलब in India everyone can take part in the election. Political equality है, political freedom है. इसका मतलब कोई भी elections में खड़ा भी हो सकता है. कोई educational restrictions नहीं है, कोई पैसे से related restrictions नहीं है. If you want to stand in the elections, you can stand in the elections. And you have the right to vote. और वो भी secret ballot है इंडिया. ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस हैज प्लस
our constitution also talks about that India has a parliamentary form of government, that too bicameral parliament है, जिसमें representative form of government होगा. तो ये सब जो features है, which are ये सब जो provisions है, which are there in the constitution, it says that India may there will be democratic framework, and because of this democratic framework जब election होगा तो obviously competition होगा, but competition will be what? Democratic competition. Why democratic? Because every party is standing at par with each other. हर पार्टी एक दूसरे से इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सबके लिए बराबर है रूल्स एंड रेगुलेशन. तो जो भी इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा, और जो कंपटीशन भी होगा वो फ्री एंड फेयर होगा. ठीक है, तो इसीलिए इंडिया का सेकंड चैलेंज था डेमोक्रेटिक. और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक होना नेसेसरी है, बट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इट इज नॉट सफिशिएंट. सो दैट इज वाज द सेकंड थिंग. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना. देन द थर्ड चैलेंज, जैसे मैंने बोला कि थर्ड चैलेंज क्या था, थर्ड चैलेंज was nothing else but well-being and development of all citizens. That means the third challenge was that our country, our government should promote well-being of all citizens, not just for some groups. That is, constitution में आप देखोगे इक्वालिटी को emphasize किया गया. इक्वालिटी को emphasize करने का मतलब the constitution, it has provided special protection for the socially disadvantaged group. Socially disadvantaged in the sense scheduled caste, scheduled tribe, OBC, ये सबको. तो यहां पे वही है, the third challenge was to ensure development and well-being of the entire citizen society and not for some sections. Here again we can see that the constitution has clearly laid down the principle of equality, and it has given special protection to socially disadvantaged group, religious and cultural communities. ठीक है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया. आप देखते हो ना रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन है ये क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि इक्वालिटी इंश्योर हो. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने पढ़ा है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहां है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? दीज आर द प्रिंसिपल्स विच द स्टेट शुड परफॉर्म. दैट मींस ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली स्टेट को बोलता है कि आप इक्वालिटी मेंटेन कीजिए, आप जस्टिस मेंटेन कीजिए, आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए. तो ये है, और ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हर पर्सन को राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारा गारंटी दिया है. तो ये आपका रियल चैलेंज है. दैट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल से वेलफेयर गोल्स ये सब आपको अचीव करना है. सो 3 challenges are there. One is building a united India, second one establishing democracy, and the third one is well-being and development of all citizens. आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, सो 2-3 टास्क है आपके सामने. पहला मैंने आपको एमसीक्यू बोला, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द challenges, ठीक है, what are the challenges faced by independent India? अब ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आ सकता है. ठीक है, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, इसमें से कहीं से भी मुझे नहीं लगता एमसीक्यू बन सकता है, बट यस एजर्शन रीजनिंग आपका बन सकता है. तो आपको पता रहना चाहिए एमसीक्यू के अलावा एजर्शन रीजनिंग भी होते हैं.
assertion रीजनिंग पे भी हमें ध्यान देना है. ठीक है. So for today we are ending this class here. Next class we will be continuing from here only. ठीक है. Hopefully आप सबको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से ये पूरे कोर्स को आगे बढ़ा के ले जाने वाले. Once again I thank you all for joining here and I hope you all will be joining this for मतलब जो भी आप लोग इस कोर्स में अगर enrolled होना चाहते हैं then you all can enroll here and there are procedures for enrollment. I'll not discuss about that and neither I want to discuss about it, but yes, please remember this is a very, very important thing that we are focusing on the boards. Boards के ऊपर पहला focus है and then with boards we are coming up with the CUT part also. ठीक है? So that is what is there. So thank you all. See you tomorrow. Stay and see you in the next class. Sorry. See you in the next class. Until then, thank you. Take care. Goodbye. And myself, I'm Girish Venkatesh. And this was the political science class for the boards plus CUT batch. ठीक है? Thank you.